अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद आप सबको KITCC पॉडकास्ट सीरीज़ पिलर्स ऑफ चेंज के दूसरे एपिसोड में। काशिफ इकबाल थैलेसीमिया केयर सेंटर में थैलेसीमिया पेशेंट्स का ना सिर्फ मुफ्त इलाज होता है बल्कि उनको और बहुत सारी सहूलतें फराहम की जाती हैं, जिसमें उनकी जहनी और समाजी तरबियत भी शामिल है। डॉक्टर अस्मा मखानी founded the Buttercups platform that offers psychosocial well-being to individuals ranging from children to adults. She is also the founder of the Psychosocial Wellbeing Center at the Kashif Iqbal Thalassemia Care Center, that is a platform for the integrated comprehensive care of thalassemia major children and adolescents since 2015. तो चलिए आज हम जानते हैं कि किस तरह डॉक्टर अस्मा और उनका डिपार्टमेंट थैलेसीमिया मेजर चिल्ड्रन की मदद करता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अस्मा, हाउ आर यू? आई एम गुड, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग कि आप अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं लोगों को कि where are you from and what All you right, do? so by profession I'm a clinical doctor. Okay. I'm a fellow from Tufts University and neuro-linguistic programming master coach, hypnotherapist and timeline therapist जो पाकिस्तान में इस वक्त बहुत कम लोग हैं, but it's a novel approach to treat deep-seated subconscious based traumas and all that. So this, and then I'm a public health expert, MSPH and blah 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 and many other things. So this is my बैकग्राउंड। ओके, सो मतलब मुझे ये पूछना था कि पाकिस्तान में एंड द पीपल अराउंड हियर दे लाइक अगर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई मसले होते हैं तो दे थिंक कि लोग पागल हैं या दे आर नॉट वेल अवेयर कि दिमागी कोई मसला है। तो व्हाट स्ट्रगल्स डिड यू फेस जब आपने यहाँ पे सेंटर फाउंड किया द काशिफ इकबाल में? Right from the beginning, I never see someone who's only in domain of a mental health issue. Human being जो है, मैं आपको बताना भूल गया, मैं एक human development expert भी हूँ. So maternal and child health and adolescent well-being is also my domain of speciality. So I never been trained to see a human as a human in terms of mental health or a physical health or a social health. So we have been trained in terms of कि हम individual को एक holistically देखते हैं. If someone is like not well in terms of their mental and emotional health, how they will be able to cater their physical health. So हमारे यहाँ dilemma ये कि हम ठीक है, स्पेशलिटीज आर इम्पॉर्टेंट बट दे आर नॉट इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब ये कि अगर किसी के साथ कोई फिजिकल इशू है तो वो हुआ क्यों है, कहाँ से शुरू हुआ था, एंड देन वी नीड टू हैव टीम्स जो उसके ऊपर काम कर रही हो। एक होलिस्टिकली हम एक टैबलेट दे देते हैं या हम एक छोटी सी गाइडेंस दे देते हैं कि आपको यू हैव टू मॉडिफाई योर लाइफस्टाइल। What in the lifestyle, which elements of your lifestyle? So you asked me कि आपने कैसे शुरू किया? So I was like having this organization Buttercups जिसमें मैंने छोटे बच्चों के लिए, उनकी मदर्स के लिए और सारा स्टार्ट लिया था। तो मैं यहाँ पर काशिफ इकबाल थैलेसीमिया केयर सेंटर में एज अ पार्ट ऑफ अ वॉलंटियर इंटर्नशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने बच्चों को लेकर आई थी, अपने ग्रुप को। एंड आई फेल्ट कि यहाँ सिर्फ ब्लड ट्रीटमेंट मिल रहा है या आयरन चिलेशन मिल रही है, उस वक्त ये सारे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे। सो आई थॉट कि नो, देयर इज अ सीरियस लैक ऑफ दैट कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेशन of not only mental health but social emotional learning and mindfulness was critically missing. तो बस वहाँ से ये जर्नी शुरू हुई एंड आई डोंट सी एज अ जर्नी बट इट इज़ अ वेरी important element of a care which individuals here need, not only here but हर जगह, हर किस्म की बीमारियों में integrated comprehensive care का बहुत element है। तो जो psychosocial wellbeing center है, इसमें हम social emotional learning and mindfulness इसके साथ integrate करते हैं blood transfusion, iron chelation and not only for the children with thalassemia major but the staff's well-being and everyone around here. So it's like a huge domain now. Yeah. तो मतलब सबको ही trainings मिलती हैं इसमें, like whole of the departments and stuff, including the children with the patients. अच्छा. And like how do you cater the families and the patients here? Like what do you do? What activities अच्छा, do you इससे do? भी पहले हम अगर ये देखें कि हम बच्चे को कैसे लेके चलते हैं, like main बच्चे ही हैं, so एक
पूरा जो है इनके लिए जो बच्चे बड़े हैं, जो एडोलेसेंट्स हैं, उनके लिए पहले तो जो छोटे बच्चे हैं जो बिल्कुल न्यूली 6 मंथ्स, तो उनके लिए पूरा एक प्रोग्राम है, मेक द कनेक्शन, एंड इट्स एन इंटरनेशनल प्रोग्राम बेस्ड ऑन इंटरनेशनल करिकुलम, जो ये आप सारा यहाँ पर देख रहे हैं। उसमें माँ और बच्चे शुरू के 5 years जो हैं वो कनेक्शन नहीं है। एक तरफ बच्चे को थैलेसीमिया मेजर है, वो एक कंसर्न है हमारे कल्चरल डेमोग्राफिक सिचुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कराची में अगर स्पेसिफिकली यहाँ बात करें तो एक माँ जब सुबह से आ रही है, काम करी, दूसरे भी बच्चे हैं घर में, और भी बहुत सारी चीजें, सो हाँ, तो वो यहाँ पर जब आते हैं तो आई डोंट वांट टू सी देम वेस्टिंग द टाइम फॉर पेशेंट्स, यू नो, कि जब उनकी बारी आएगी वो डॉक्टर के पास जाएंगे और करेंगे। तो आई वांट देम टू कम हियर इन द सेंटर, सिट हियर, आवर स्टाफ इज ट्रेनिंग देम कि आपको बच्चे के साथ कैसे कनेक्ट करना है, बिकॉज अर्ली ईयर्स इज ऑलवेज सर्व एंड रिटर्न, कि आपकी मदर है वो भी यहाँ के, हमारा हर वक्त यहाँ पर एक एनवायरनमेंट होता है जिसमें आपको मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, म्यूजिक, आपका एक पीसफुल एनवायरनमेंट जो है वो मिल रहा होता है। तो वो सारी चीजें हम उनको ट्रेन करते हैं, पूरे करिकुलम, हर चीज उनके लिए। देखने में छोटा सा एरिया, बट देयर इज रोज पूरे दुनिया है, आप समझे यहाँ पर। इसके बाद हमारा सेशन शुरू हो जाता है माइंडफुलनेस का, जो वार्ड बेस है। अच्छा। बच्चे जो आते हैं घर से तो थके हुए होते हैं और उनका बॉडी हीमोग्लोबिन कम हुआ होता है, दे आर वेरी लेथार्जिक, उनको हाँ, तो जब वो यहाँ आते हैं फिर जब अपनी लाइन में लगते हैं, दवाइयाँ ले रहे होते हैं उनको जाने के लिए भी, तो आई डोंट वांट टू सी देम वेस्टिंग ए टाइम अगेन इट्स सिटिंग इन द वेटिंग एरिया, और फिर यहाँ वहाँ अपना टाइम, सो वी कॉल देम अप। सारे बच्चे वार्ड में जाते हैं और वो अपना मॉर्निंग मेडिटेशन करते हैं, और वो मेडिटेशन दे आर नॉट ऑर्डिनरी मेडिटेशन, दे आर म्यूजिक बेस्ड, बट उस म्यूजिक में डिफरेंट वाइब्रेशन, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे काम किया जाता है, सो दे बिकम रिलैक्स इमीडिएटली। 11 to 12, 10 to 11 जब वो वहां से फारिग होते हैं, दे कम इनटू दिस एरिया, जो एक्चुअली यहाँ पर उनकी सोशल इमोशनल लर्निंग एंड माइंडफुलनेस, जो सेल्फ प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया, इट्स कॉल्ड सेल्फ सोशल इमोशनल लर्निंग एंड माइंडफुलनेस। बच्चे जो हैं सोशली कितना एक्टिव होते हैं, आपस में अपनी कम्युनिटी, दिस इज लाइक अ कम्युनिटी, तो वो आपस में किस तरीके से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, एंड देन उसी में we have developed many different programs, especially जो adolescent है उनके लिए fellowship programs हैं। fellowship program ये होता है कि जो यहाँ पे departments हैं, चाहे बच्चा पढ़ा लिखा है नहीं है, उसके educational लेवल के हिसाब से, उनकी अपनी पर्सनल एस्पिरेशंस को देखते हुए, we post them for 3 months into different areas of the center, नॉट PSWC के सेंटर, पूरे KITCC के सेंटर्स के डिफरेंट जगहों पे। बच्चे फार्मेसी में अपने 3 months दे रहे हैं, बच्चे वार्ड में लर्न कर रहे हैं कि कैसे आप वो कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड दे गो, दे डू फेलोशिप इन द PSW, तो देयर सारे डिफरेंट एरियाज हैं जहाँ पे बच्चे अपने 3 months के लिए काम कर रहे हैं। दिस इज स्पेशली फॉर द एडोलेसेंट्स। और फिर हमारे स्टेक होल्डर प्रोग्राम है। स्टेक होल्डर प्रोग्राम में जो बच्चे यहाँ पर हैं, हाउ दे लर्न द स्किल्स, स्टैंड विद अस, कंधे से कंधा मिला के वर्क, इम्प्लीमेंट एंड लर्न फ्रॉम दैट। सो ये एक बहुत ही कंड्यूसिव टाइप का एक एनवायरनमेंट होता है जिसके अंदर nobody feels we are different, nobody feels कि हम कोई बड़े हैं या छोटे हैं, even a small child can be a stakeholder। So एक तो ये हो गया, और इसके बाद जो है हमारा एक्सटेंशन नेचर बेस्ड प्रोग्राम है। एक्सटेंशन नेचर बेस्ड प्रोग्राम, उसमें बच्चों को जो है फ्रीक्वेंटली एवरी फोर्टनाइटली हम उनको लेके जाते हैं एक नेचर बेस्ड एनवायरनमेंट में। इसके भी 2 एस्पेक्ट है, एक रेगुलर मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, एंड अनदर वन ओवरनाइट, दैट इज आल्सो फॉर दोज एडोलेसेंट्स। तो ये सारा सब में सेल्फ दिया जा रहा है, सोशल इमोशनल लर्निंग, माइंडफुलनेस दी जा रही है। तो दिस इज हाउ इट इज। फिर हमारे 2 स्टेशंस हैं, एक हमारा ओपन एरिया जो रूफ पे बना हुआ है जिसमें टेबल टेनिस और ये होगा, सो फिजिकल, सोशल, इमोशनल लर्निंग, माइंडफुलनेस, एवरीथिंग इज दैट। एंड आई थिंक द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स अप उसी में से आ जाएगा। Okay, like I wanted to ask, आप बहुत busy रहती हैं, like you are at Khan too, I came to know that, how did you manage like setting up this whole center, and like what initial struggles did you face when you were No struggle at all. No struggles. When you know what you want to do, you can do. It's not only AKU, it's not only PSW, there are so many other things I have been in. I'm a mother of 2. I'm a wife. I'm a housemaker as well. So it's not about amount of work.
it's your passion, and that empathy is something, you know, एक छोटा सा element है, but it's your passion towards bringing the change and bring something new in terms of comprehensive care. That is what I am made for, I think. So I never get tired. I enjoy it. Yes, I have to be very punctual. I have to be very, you know, at the point, know my thing, what I'm doing, do it, move, next point. So this is it. So it's never been so hard for me. Okay. It's very easy indeed. बहुत easy था. सही. And how do you see like this thing impacted the children? के बच्चों पे क्या फर्क आया इस चीज से? जो वो बच्चे आपको खुद बताएंगे. ओके, सो अगर मैं इसको अगर हम स्टडी करें या बीइंग अ पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट, तो हम हर चीज मेजर के बगैर नहीं करते हैं. वी मेजर इट लाइक रिसर्च होती है, हाँ, वी कॉल इट, आम जबान में हम मेजर कर रहे हैं. तो हमारे पास पूरे डेटाज हैं जिसमें हम ये बता रहे हैं कि हमने कितने बच्चों को कोविड में भी, उससे पहले भी और अब तक डिफरेंट टाइम में हमने किस तरीके से उनमें क्या चेंज देखा इन टर्म्स ऑफ देयर सोशल वेलबींग, एकेडमिक वेलबींग. ऑब्वियसली सारे बच्चे नहीं जा रहे हैं, बट व्हाट वी वांट टू सी इन टर्म्स ऑफ देयर सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, उनकी वेलबींग, सो वो सारे हमारे पास जो हैं, इट शोज लाइक दे आर गोइंग अप. Okay. So that's in terms of, you know, peace for me to see the change. Not obviously not in everyone, because एक human पे बहुत सारे आपके interactions हैं, आपकी living कहाँ पर है, आपके social, emotional, demographic influences सारे हैं. So but even then I see that we are alhamdulillah successful in bringing some change in these, you know, children, adolescents, उनके parents. तो आपने मुझे पूछा कि parents के लिए क्या है, तो जो parents का जो प्रोग्राम है वो एक हमारा सैटरडे को एक पूरा एक डेडिकेटेड टाइम हम उन्हें दे रहे होते हैं. 2 से 3 घंटे वो हमारे साथ होते हैं. पेरेंट्स सारे यहाँ पर इसी जगह पर होते हैं, एंड वी आस्क देम व्हाट आर दे गोइंग थ्रू, व्हाट दे वांट. कुछ चीजें हम पहले से होमवर्क करके रखे हुए होते हैं, हमें पता होता है कि इस चीज पे बात करनी. फिर हम डॉक्टर्स के साथ, नर्सेज के साथ, पैरामेडिक स्टाफ के साथ, मैनेजमेंट के साथ जो भी इश्यूज हैं, जो भी चीजें हैं, हम उनको इस तरीके से उनके साथ डिस्कस करते हैं कि दे फील सेफ, they feel comforted and they feel supported. So this is how we take care of parents, and not only mothers, fathers भी हमारे पास होते हैं. हमारे पास बहुत सारे volunteer बच्चे भी आ रहे होते हैं. मतलब बहुत holistically हम चीजों को देख रहे होते हैं और एक respectful way में अपने communicate करते हैं. और जो parents हैं, it's like family now. वो भी आते हैं, हमें बता रहे होते हैं अपनी सारी चीजें, and we learn to grow with each other. तो मैं उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ. As you mentioned earlier कि like staff trainings भी होती हैं, management trainings भी होती हैं, तो what do you focus on in these trainings? Communication and empathetic care. Okay. With the children and with the patients. Like how नहीं, आपने staff का staff and the management for staff, yes, empathetic care. Okay. And communication. सही है. Communication है वो वाला communication, आप कैसे बोल रहे हैं? But communication in terms of how you deal in ward or with patients and this, we have to do a lot of work in this domain. We have recently touched this because हमें तो पहले बच्चों को cater करना, parents को cater करना. Now we are settled with that domain. अब हमें जो है थोड़ा और आगे जाके अब हम actually we do not call them as a trainer, they themselves, everyone is a trainer, so it's like a supportive psychosocial wellbeing center में कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है जो किसी को train कर रहा है. We all learn from each other, so the concept here is of आपका compassionate empathetic care with your vision. सब कहते हैं ना फाइटर हैं, थैलेसीमिया फाइटर या थैलेसीमिया वॉरियर. I said why you are giving such a, you know, एक psychosocial well-being expert के और professional के जब domain में आप होते हैं, तो you never want to see someone in a negative domain of, you know, saying कि मैं एक फाइटर हूँ या मैं एक जो हूँ वो सर्वाइवर हूँ या मैं वॉरियर हूँ. This shows के हाँ आप बोलो. I don't understand why I'm coming to that. you taking like the warriors and the survival, like if someone is a fighter, so it comes in a positive way, I think. Okay. Why? You know, अच्छा fight करते हैं तो what do you want? You need energy. Yeah. You need have that purpose in your mind. You need always to think in your mind कि मैं एक fighter ही हूँ.
Why? There are diseases, there are issues beyond this thalassemia. आपके पास अगर घर में एक पैसे नहीं है, रोटी नहीं है, वो सबसे बड़े शायद फाइटर है. So what I have learned throughout my career is that first change your language. If you say I am a survivor, I am a warrior, I am a fighter, इसमें आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है? Your heart start beating कि मुझे किसी चीज से लड़ना है, मुझे फोर्स. एंड लाइफ शुड नेवर बी लाइक कि आपको फोर्स देनी है. लाइफ शुड बी पीसफुल. सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम थैलेसीमिया मेजर के बच्चों के बात करें तो वी कैन वेरी इजीली से लिटरेचर भरा पड़ा है, स्टडीज हुई हुई हैं, और उसमें ये कहा कि दे आर पीपल और पर्सन्स विथ दिस डिजीज, XYZ डिजीज. अगर हम कहें वॉरियर तो फिर कैंसर पीडियाट्रिक पॉपुलेशन कहाँ जाएगी, वो ज्यादा तकलीफ में. और फॉर योर इंफॉर्मेशन अभी हमारे पास जो थैलेसीमिया की जो डिजीज है उसमें सर्वाइवल रेट इज कंसिडरेबली इंक्रीज्ड. हमारे पास एडवांसमेंट्स हैं, हमारे पास आयरन चिलेशन है. सो व्हाई स्टिल वी आर लेबलिंग देम कि ये जो है ये वॉरियर्स हैं, ये फाइटर्स हैं, ये सर्वाइवर्स हैं? नो, दे आर पीपल or persons or children or adolescent with thalassemia. देखो अगर आपको मैं कहूँ कि आपकी ये एजुकेशन है और आप ये हैं, क्या आप एजुकेशन हो? नहीं. You are with this academic. Academics credentials हैं, आप credentials नहीं हो. So it's a huge difference. So if we just change our language, और हम जिस तरह सामने वाले को बता रहे हैं कि आप तो थैलेसीमिया के, नो इट्स नॉट लाइक दैट. यू आर एन इंडिविजुअल एंड यू आर विद थैलेसीमिया मेजर. आप थैलेसीमिया मेजर नहीं है. इसमें ह्यूज डिफरेंस आ जाता है. वहीं से आपकी जो है वेलबींग स्टार्ट होती है. सो दिस इज इट. ओके, सो लाइक we'll conclude this podcast. So do you have a message to give to the audience, या आप कोई मैसेज कन्वे करना चाहेंगी लोगों को जो देख रहे हैं related to this whole बिलीव मेरा ये है, या जो मैसेज, नॉट बिलीव, मैसेज ये है कि टेक पीपल एज हु दे आर. डिजीजेस हो गई, उनके एसोसिएटेड बिलोंगिंग्स हो गई, दे डू नॉट व्हाट दे आर बिकॉज ऑफ दैट. टेक इंडिविजुअल्स एज इंडिविजुअल्स, स्पेशली जैसे हम थैलेसीमिया सेंटर में बैठे हैं. सो मेरी रिक्वेस्ट हर एक से ये है कि डोंट से दे आर थैलेसीमिया मेजर पेशेंट्स. दे आर नॉट पेशेंट्स, दे आर ह्यूमंस. सो उनको आप नाम से बुलाएं, आप उनको वॉरियर ना कहें. आप जिस तरह मैंने अभी सारी चीजें, दे आर हैप्पी, वेरी हैप्पी, क्रेडिबल पीपल, हार्ड वर्किंग, अचीविंग एवरीथिंग. व्हाई वी आर लेबलिंग देम लाइक दिस? सो ये मेरा एक है कि चेंज योर वर्ड्स. योर व्हेन यू चेंज योर वर्ड्स, योर थिंकिंग्स चेंज, योर बिहेवियर्स चेंज, एंड योर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स चेंज. एंड सामने वाले को तो आप लोगों ने, हम सब ने बोल बोल के आदत कर ही दी है, बट नाउ ओनली वी आर हियर हु कैन चेंज देयर पर्सपेक्टिव ऑफ हु दे आर. तो अगर आप ट्रीट नहीं कर सकते, आप डॉक्टर नहीं है, आप नर्स नहीं है, just changing your words will help them. और ये सब कॉन्शियसली होता है. सामने वाला सुन रहा है 24 घंटे कि थैलेसीमिया वाले हो, थैलेसीमिया में हो. नो, इट्स दे आर नॉट लाइक दैट. लाइक उनको जज ही इसी बेस पे किया जाता है. आई थिंक कि आपको ये डिजीज है. Who is here credible to judge someone? Yeah, right. या मेरे साथ इतने सारे बच्चे हैं, कभी मुझे लगता है कि दे आर इनक्रेडिबल और दे आर रियली ब्यूटीफुल पीपल जो आके मुझे सिखा रहे होते हैं. तो हमारा तो आगे उनके लिए बहुत सारी प्लान्स हैं. तो वी नेवर सी समवन के जो यहाँ आते हैं, अपना ब्लड लगाते हैं, चिलेशन करते हैं, अपनी लाइफ जी रहे हैं. सो व्हाई वी आर टेलिंग देम? तो यही एक मैसेज है कि चेंज योर वर्ड्स, चेंज योर वर्ड्स, चेंज योर फीलिंग्स. तो वो चीजें बेटर होती हैं. जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमने डॉक्टर अस्मा से बात की एंड वी गॉट टू नो कि थैलेसीमिया चिल्ड्रंस की किस तरह से लाइफ अफेक्ट होती है, नॉट जस्ट विद द डिजीज बट ऑल्सो कि उनकी मेंटल हेल्थ या सोशल इमोशनल वेलबींग पे कितना अफेक्ट हो रहा होता है. तो शी इज़ वर्किंग हेयर एज अ लाइक अ वॉलंटियर जो बच्चों को हेल्प कर रहा है उनका डिपार्टमेंट. एंड लाइक देयर इज़ अ होल टीम जो यहाँ पे काम कर रही है. एंड लाइक देयर इज़ अ प्रोग्रेसिव चेंज जो मतलब बहुत इम्पेक्ट कर रहा है. इनके सर्वाइवल रेट भी इंक्रीज़ हो रहे हैं और इनका वैसे भी इम्पैक्ट इंक्रीज़ हो रहा है. तो लाइक
जो उन्होंने मैसेज कन्वे किया उन पे फोकस करें. लाइक यू शुड चेंज योर वर्ड्स. लाइक यू शुड नॉट जज देम बेस्ड ऑन देयर डिजीजेस. यू शुड नॉट जज देम एट ऑल. बल्कि आप उनको एज एन इंडिविजुअल ही कंसिडर करें कि वो एक नॉर्मल बच्चा है, बच्ची है, या पेशेंट भी नहीं बोले उनको, बस आप नॉर्मल उनको एज अ ह्यूमन बीइंग कंसिडर करें. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाकी आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं. अल्लाह हाफिज़.